Again, we are starting with the same chapter, that is surface area volume. Exercise 13.3. It is totally based on right circular cone. Now, what do you mean by right circular cone? So, it is a cone with the circular base, and this is the vertex of the cone, and this is the center of the base. If I join vertex with the center, it always be perpendicular to the radius. This is what said to be the right circular cone. For this cone, the 13.3 exercise we are going to solve, that is surface areas of the cone. So let me revise the formulas for the curve surface areas. So curve surface area of cone, it is nothing but pi r L. Now let me introduce what do you mean by L. So L, it is the slant height. This is what the height, we can say it is L. This is said to be the perpendicular height, and perpendicular height is always be denoted by small h, and this is the radius of the base. So as height is always be perpendicular to the radius, this is what said to be the right circular cone. Now in this figure we can just look at this triangle, it forms the right triangle. So of course we can apply the Pythagoras within the right triangle. So L square is equal, this is what the hypotenuse, side opposite to right angle, hypotenuse. So L square is equal to R square plus H square. This is what Pythagoras. That means this can be used if we are given any of the two sides. And if you wish to find out the third one, we can apply the Pythagoras, and by using Pythagoras, we can find out the remaining third side. Suppose many times you might be given height and radius. And if you are asked to find out the area of the curve surface area of the cone, so to find out the curve surface area, we require the slant height, but slant height is not given. So by applying Pythagoras, we can find out the L. Okay. Now remember, whenever you are given simply height, always we will consider it as perpendicular height. But whenever we are saying L means slant height, हाइट अगर हमें उनको स्लैंट हेड कहना है तो स्लैंट वर्ड ऑलवेज बी यूज, वो होगा ही. बट सपोज दैट वर्ड इज नॉट यूज, देन दैट सिंपली हाइट वी विल कंसिडर एज द परपेंडिकुलर हाइट h. Okay. Now if it is the closed cone, suppose this closed cone is there, that means this circle is also be added. So in that case we can find out total surface area of the cone. So how do you find out? So it is curve surface area plus area of the base pi r square will be added. If I take out pi r as a common, that will be L plus R. This is what the total surface area. Now these are only the two formula on the base of the areas of the cone. Now on the basis of the same, let me try to solve exercise 13.3, that is sum number 1. Diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter. So diameter is given 10.5 centimeter, and its slant height is given 10 centimeter. L is given 10 centimeter. Then find its curve surface area. Okay. So curve surface area of cone, that is equal to pi r L. Now, as here diameter is given, we have to find out the radius. So let me find out R. So R is equal to D upon 2. 10.5. So can I say it is 105 upon 10, 10.5, and divide by 2. If I cut it out, 5 2s are 5 2s are 5 1s are, it is 21 by 4 centimeter. This is what the radius. So यहाँ डेसिमल में करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमें आगे कटिंग करना है तो फ्रैक्शन में ही रहने दो. So that equals to pi means is it 22 by 7, R that is 21 by 4, and L it is given 10. Simple. Now if I cut it out, 7 3s are 21, 2 2s are 4, 2 11s are, 2 1s are, 2 5s are 10. So 5 3s are 15 into 11, that is equal to 165 square centimeter. This is what the curve surface area of the cone. Then the second one,
Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter. Slant height is 21 meter and diameter of its base is 24. Diameter is given 24 meter. Then find total surface area of the cone. Now, whenever we are asked to find out the total surface area of the cone, we will consider cone as a closed cone. So let me find out radius. So d by 2, that is 24 by 2, which is 12 meter. Directly, let me use the formula for total surface area of cone, TAC of cone. That is pi r into bracket L plus R. Always we will use this simplified form. ये प्लस पाई आर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. सो सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर आप यूज करते हो तो आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी होता है, तो हमें कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा. सो दैट इज 22/7 r, it is 12 into bracket L, that is 21 plus radius is 12. So that is equal to 22/7 into 12 into 2 plus 1 3, 2 plus 1 3. So it is 33. Now, if I take the product, that is equal to 8712 by 7, which is equal to approximate, we can say it is 1244.57 square meter. This is what the answer. Now, moving ahead to the third sum. Curve surface area of a cone is given 308 square centimeter. Now here the reverse sum is given, curve surface area is given. Curve surface area that is given as 308 square centimeter. Its slant height is 14, L is equal to 14 centimeter. Find the radius of the base and total surface area of a cone. Total surface area of the cone is also to be find out. Now, देखो यहाँ पर cone, this is height, radius, slant height. L is given 14, then R हमें पता नहीं है, H भी हमें पता नहीं है, but कर्व सरफेस एरिया इज गिवन. अब ये सारे सम में, ये चैप्टर में हमें खास याद रखना है, जो भी डेटा में दिया उसका कुछ यूज होगा. रेडियस फाइंड आउट करनी है तो हमने ऑलरेडी कहा कि कोई भी तीन में से एक फाइंड आउट करना हो तो बाकी की दो मेजर हमें पता होने चाहिए. सो सपोज मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है तो स्लैंट हाइट और हाइट हमें दोनों पता होनी चाहिए, बट यहाँ हाइट तो हमें दी नहीं तो रेडियस हमें पता नहीं चलेगी. तो रेडियस कहां से मिलेगी? तो कर्व सरफेस एरिया दिया है, सो लेट मी यूज द फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, that is equal to pi r L. Let me substitute the value. Here curve surface area is given 308, then pi 22/7, radius हमें find out करनी है and L is given 14. अब यहाँ कटिंग कर दो, 7 2s are 14, therefore 308, 22 into 2 both are transposed at the denominator, so we will have the equation of R. So 22 into 2 both will be transposed at the denominator. अब इसका सिंपल हम कटिंग कर देंगे. सो 11 2s are 22, 11 2s are 22, then remainder 8, 11 8s are 88. Then 2 1s are 2 14s are 2 1s are 2 7s are. So here we will have R is equal to 7 centimeter. This is what the radius. अब रेडियस मिल गई, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो टोटल सरफेस एरिया क्या है हमारा? पाई आर इंटू ब्रैकेट एल प्लस आर. हमें हाइट की जरूरत नहीं है तो हाइट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, यहां डायरेक्टली हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया. सो टीएसए ऑफ कोन, that is equal to pi r into bracket L plus R, which is equal to 22/7 into radius is also 7,
L is given 14 plus radius is 7. 7 will cut out. 22 into 21 मल्टीप्लाई कर देंगे. इट इज 462 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. सो टोटल सरफेस एरिया ये हमने फाइंड आउट कर दिया है. नाउ मूविंग अहेड टू फोर्थ सम. Fourth sum, it is given a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Conical tent, टेन मीटर हाई. नाउ 10 मीटर हाई कहा, इट मींस ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट समझनी है, स्लैंट हाइट नहीं, सिर्फ हाइट कहा है. सो h is equal to 10 meter for tent and radius of its base is 24. R is equal to 24 meter. Then find, first we are asked to find out the slant height of the tent, and second, cost of the canvas required for make the tent if the cost of 1 square meter canvas is 70 meter. ये हमें cost of canvas required find out करनी है. So cost of canvas, so cost of canvas required ये हमें find out करना है. So cost is given for canvas, it is 1 square meter is 70 rupees. So cost of canvas 1 square meter is equal to 70 rupees. So here we are asked to find out the cost of the canvas. So let me first find out the curve surface area. I mean, in order to find out the L, so let me apply Pythagoras. L square is equal to R square plus H square. Radius is given 24. Substitute the value. R is equal to 24 square plus H is given 10 square. 24 square, that is 576, and 10 square, that is 100. If I add both of them, that is equal to 676, and this is what the square of 26. Hence, L is equal to 26 meter, not the centimeter, meter. So L मिल गया. अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड और कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज. अब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो ऑफकोर्स हमें सिर्फ ये टेंट मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया लेना है. सो लेट मी फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना होगा, और जितना कैनवास यूज होगा उसका कॉस्ट दिया है 70 रुपीज. तो कॉस्ट जब भी फाइंड आउट करना है, सिंपल यूनिटरी मेथड पे चले जाओ, 70 जो भी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, दैट इज पाई आर एल, which is equal to 22 by 7 into radius हमें दी है 24 into L, that is 26. अब यहाँ पे कटिंग तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे ही फॉर्म में रहने दो, या तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये होगा 13,728 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर मीटर. दिस इज व्हाट द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. नाउ कॉस्ट के लिए यूनिटरी मेथड यूज करो. सो कॉस्ट ऑफ कैनवास, that is 1 square meter, it costs 70 rupees, and therefore here the total area 13,728 by 7 for this square meter. How much is the cost? Question mark कर दिया. So क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा,
13,728 डिवाइड बाय 7 इंटू 70, तो 7 10 70 हो जाएगा. सो टोटल कॉस्ट इज 137280, means 1,37,280. This is what the total cost of tent. Now, the fifth one. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter? Tent of height 8 meter, base radius 6 meter, base radius 6 meter. Assume that the extra height of the material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Okay, so margin is given. So margin is 20 centimeter and pi is equal to 3.14 is also be given. टेंट उन्होंने बनाना है, बट टेंट की स्टिचिंग में जो भी मार्जिन जाता है वो 20 सेंटीमीटर का है. एंड ऑफकोर्स द टेंट इज टू बी मेड किससे बनाया है? विद द हेल्प ऑफ 3 मीटर वाइड टर्पोलिन. 3 मीटर वाइड है, सो 3 मीटर वाइड टर्पोलिन में से बनाया. सो व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन इज रिक्वायर्ड? तो देखो समझो, हमें पता है कि हम जब भी हमारे कपड़े बनाने जाते हैं टेलर के पास, तो टेलर भी हमें एक रेक्टेंगल पूरा जो कपड़ा होता है लंबा, जो पूरा रोल किया होता है, वो रोल में से ही कटिंग करके देते हैं. दैट मीन्स द विड्थ ऑफ दैट कॉटन और द कैनवास वॉट एवर द मटेरियल दैट इज फिक्स. जैसे ही छोटे बच्चों के लिए होगा तो वो लेंथ कम लेगा, अगर बड़ा इंसान है, कोई बड़ा आदमी है, उसकी हाइट बॉडी ज्यादा है तो वो लेंथ ज्यादा लेता है. बट हर एक की विड्थ जो है वो सेम रहती है. वैसे ही यहां पर भी ये समझ लो कि हमारा ये रेक्टेंगुलर पूरा रोल्ड ये है टर्पोलिन. टर्पोलिन इट इज द टाइप ऑफ द अगेन मटेरियल जिसमें से टेंट बनाते हैं. तो ये जो यूज करना है उसके लिए भी आपको उन्होंने विड्थ दे दी है. सो विड्थ कितनी कही उन्होंने? सो विड्थ इज 3 मीटर. सो लेट मी राइट विड्थ इज इक्वल टू 3 मीटर. मतलब समझो कि ये टर्पोलिन जो है हमारा रेक्टेंगल होगा. ये अगर उसकी विड्थ 3 मीटर, तो ये लेंथ कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब क्या होगा कि जो टेंट हमने बनाया, टेंट का जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा, उसमें जो मार्जिन 20 सेंटीमीटर का हम ऐड कर दो, दैट मीन्स हमें पता चल जाएगा हाउ मच टोटल टर्पोलिन इज यूज फॉर मेकिंग द टेंट. और जो वो एरिया पूरा टेंट का होगा वो हमने ये रेक्टेंगुलर टर्पोलिन का जो ये मटेरियल है उसमें से निकाला है. तो यहां हम सिंपली लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप टर्पोलिन का जो था दैट इज यूज फॉर मेकिंग टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टेंट. मतलब ये एल इंटू बी इक्वल टू इसका जो एरिया होगा मार्जिन ऐड करने के बाद उसके साथ इक्वालिटी करेंगे. ये उसका मेन सम कैसे करना उसका थीम है. तो देखो, लेट मी स्टार्ट विद द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट. बट कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा स्लैंट हाइट. तो एल पता नहीं है, सो एल से स्टार्ट करेंगे. सो सपोज यहां पर मैं एल फाइंड आउट कर दो. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. रेडियस इज 6 स्क्वायर, हाइट गिवन 8 स्क्वायर. 6 स्क्वायर 36, 8 64, दैट इज इक्वल टू 100. 100 मतलब ये 10 का स्क्वायर है. सो एल इज इक्वल टू 10 मीटर. सो 10 मीटर. अब याद रखो मार्जिन 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नॉमिनल मार्जिन है, और यहां टेंट की जो मेजर डायमेंशन दी है वो मीटर में है, समझ लो. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट विच इज इक्वल टू पाई आर एल. दैट इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 3.14 कहां है? सो 314 रख देंगे. देन इनटू रेडियस 6 दी है, स्लैंट हेड हमने फाइंड आउट कर दी 10, ये 0 0 कट हो गया. अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर देंगे. सो दैट इज इक्वल टू ये हमें हो जाएगा 184.4 स्क्वायर मीटर.
ये कटिंग करके मल्टीप्लाई कर दो। सो इतना कर्व सरफेस एरिया हमें टेंट बनाने के लिए चाहिए। बट इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर का अगेन आपको मार्जिन दिया हुआ है। तो 20 सेंटीमीटर का मार्जिन हम ऐड करेंगे। लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन। अब देखो ये कर्व सरफेस एरिया जो हमें मिला वो हमने कहां से मिला था? ये रेक्टेंगुलर टर्पोलिन में से। तो यहां में उनकी इक्वालिटी कर दो। सो यहां पे हम लिख देंगे विड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टर्पोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां पे लिख देंगे कोनिकल टेंट। तो रेक्टेंगुलर था तो L इंटू की हुआ, और ये कोनिकल टेंट का एरिया हमें कितना मिल गया? 184.4। अब देयरफॉर यहां हमें L फाइंड आउट करना है, तो L का इक्वेशन बना देते। सो L इज इक्वल टू 184.4 डिवाइड बाय B। अब ये भी स्क्वायर मीटर में था और ये B हमें ब्रेथ दिया है उन्होंने 3 मीटर, तो ये भी मीटर का है, तो मीटर मीटर का डिवीजन हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 184.4 डिवाइड बाय 3। सो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, देन 3 4 जा 3 8 जा, या तो यस यहाँ पे। सो ये हाँ हमें 1 मिनट यहाँ पर ये हमें पहले ऐड कर देते हैं, ये ऐड करना हमारा रह गया। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, ये तो फाइंड करना रह गया, दैट इज इक्वल टू 84.4 प्लस 0.20। ये 0.20 ऐड कर दो। सो 20 सेंटीमीटर हम बाद में इसको ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, ये 40 समझ लो 0.6, ये 184.6 स्क्वायर मीटर। ओके, so here let me say it is L into B, that is equal to your 184.6, so which is equal to, so length is equal to 184.6 divided by 3, that equals to ये 62 पॉइंट, हाँ नहीं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये गलती हमारी हो रही है। हाँ, ये 184 पॉइंट हमारा 4 है, यही रहने दो। सो 184.4 कटिंग कर देंगे, 62.8 स्क्वायर मीटर आ रहा है। अब इसमें टोटल ये लेंथ, सो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, तो ये लेंथ 62.8 था, उसमें हमें 0.2 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 63 मीटर। दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ द टर्पोलिन रिक्वायर्ड हो जाएगी। सो दैट मीन्स ये समझिए सब में क्या करना है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट वाइज था तो कंफ्यूजन हो रहा था, तो प्रॉब्लम होना, देखो समझ लो, यहाँ सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? सो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दिए। देन वो फाइंड आउट करने के बाद हमने इसको कंपेयर कर दिया, यहां रेक्टेंगुलर में से ये बनाया है। सो रेक्टेंगुलर में से बना है, इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया ये इज इक्वल टू ये टर्पोलिन का जो एरिया टेंट बनाने में कोन के लिए यूज हुआ उसका, तो दोनों की इक्वालिटी आप कर दोगे। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन ठीक है ना? ओके, हाँ, सो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 एंड 2 8 हो रहा है यहाँ पर। हाँ, 10, सो ये हो रहा है 184.4। ओके चलो ठीक है। सो
उसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने L इंटू बी इज इक्वल टू कोनिकल टेंट का एरिया लिया। सो लेंथ का इक्वेशन बना दोगे, ब्रेथ को नीचे ले गए तो ये हमें मिल गया लेंथ, उसमें 0.2 ऐड करके हमें मिल जाएगा। मार्जिन हमें लास्ट में ऐड करना है, इतना सिर्फ याद रखो। सो मूविंग अहेड, now the sixth sum. The slant height and the base diameter of the conical dome are 25 meter and 14 meter respectively. Sixth sum. Slant height L and base diameter D are given. Are 25 meter and 14 मीटर रिस्पेक्टिवली दिया होगा तो ऑर्डर वाइज आपको ये लिख देना है। याद रखो, पहले लिखा था स्लैंट हाइट, देन उसमें दिया डायमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 per 100 square meter. Cost is given. Cost of whitewashing, it is rupees 210 और 100 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट बाद में फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा है व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दो, और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम 210 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। डायमीटर 14 दिया है, सो विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू डी बाई 2, मतलब हो जाएगा 7 मीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दैट इज इक्वल टू पाई में 22/7, रेडियस इज 7 एंड एल इज गिवन 25। ये 7 कट हो गया, 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 2 जा 50 एंड 5 55। सो 550 स्क्वायर मीटर, दिस इज व्हाट द कर्व सरफेस एरिया। अब व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट लगा दो। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 210। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 स्क्वायर मीटर इज हाउ मच? क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 550 मल्टीप्लाई बाय 210 डिवाइड बाय 100 से 0 0 0 0 कट हो गए। अब 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1155 रुपीस। दिस इज व्हाट द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। देन seventh sum. A joker's cap is in the form of the right circular cone of base radius 7 centimeter, and height is 24 centimeter. Height is 24 centimeter. जोकर की कैप है। Find the area of the sheet required to make 10 such caps. 10 ऐसी कैप बनानी है, और कैप बनानी है मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि वो पहननी होगी तो उसमें टोटल नहीं होगा, बंद नहीं होगी, हॉलो होगी कैप। सो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। बट आर और एच पता है, हमें एल पता नहीं है। सो पाइथागोरस लगा देते हैं यहाँ पर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। So R is 7 square, H is 24 square. So 4 square 49, 7 का square 24 का 576. Add कर दोगे 625. This is square of 25. And therefore L is equal to 25 centimeter. ये हमें मिल जाएगा। Now that is equal to pi की value 22/7. Radius is also 7 and L is 25. So 7 cut हो गया, again 22 into ये आया सेम 22 into 25 वही आया है, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब ये तो एक कैप का हुआ, हमें पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कैप्स। सो ठीक है, सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 such caps, 10 such caps is equal to 10 into area of one cap, that is 550 square centimeter. If I multiply it by 10, so it will be 5500 square centimeter. This is what the area required for making 10 such caps. Okay. So the next one, that is the eighth sum. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made up of recycled cardboards. बस स्टॉप जो बना है, बस स्टॉप के ऊपर उन्होंने हॉलो कोनिकल शेप्स के ऐसे डोम रखे हुए हैं। सो हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड्स, उससे बने हुए कार्डबोर्ड से। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। Base diameter of cone 40 centimeter and height is 1 meter. Height is equal to 1 meter. If the and 40 such cones, 50 cones are there. So total 50 cones are there. Okay. Each cone has a base diameter and height is given. If the outer side of each of the cone is to be painted, and the cost of painting is rupees 12 per square meter. This is what the cost of painting. What will be the cost of painting all these cones? सारे के सारे 50 cones को paint करना है. So what will be the total cost? दिया हुआ है, use pi is equal to 3.14. Pi is equal to 3.14 and under root of 1.04 is equal to 1.02. मतलब ये हमें डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें आगे जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन में शायद ये कोई वैल्यू की हमें जरूरत होगी। तो ये 1.04 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली जो वैल्यू हमें दी है उसी का यूज करके हमें पता चल जाएगा और हम लोग कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकेंगे। तो शुरू कर दें। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, क्योंकि हमें सारे 50 के 50 कोन कर्व सरफेस एरिया आउटर से हमें उनको पेंट करना है। सो पेंट सिर्फ आउटर सरफेसेस करने वाले, दैट मींस दैट इज अगेन द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का एक का फाइंड आउट करेंगे एंड सच 50 कोन्स आर देयर। सो व्हाटएवर द एरिया विल बी ऑब्टेन फॉर वन कोन, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमें मिलेगा टोटल एरिया ऑफ 50 कोन्स। पर 50 के 50 कोन्स को कलर करना है, पेंट करना है, देन वी विल गो फॉर द कॉस्ट 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो जितना भी उसका टोटल एरिया मिलेगा, दैट एरिया विल बी मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। Okay, this is what the method. So let me start with the curve surface area, but again diameter and height is given. But diameter में देखो तो diameter ये सेंटीमीटर में दिया है, height अगेन मीटर में दी है। बट इससे पहले हमने ये भी कहा था कि जब भी ये कॉस्ट दी होगी, इस पर याद रखो, मैंने ये आगे की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी तो कॉस्ट का जो भी यूनिट होगा उसी यूनिट में पूरा सम करो। कॉस्ट यहाँ पे दी पर स्क्वायर मीटर, तो मैं एरिया भी फाइंड आउट करूंगा स्क्वायर मीटर में ही। तो इसका मतलब ये डायमीटर दिया है, वो डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो रेडियस d/2 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मैं डिवाइड बाय 100 कर दो, ये मीटर हो जाएगा, 0 0 कट, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्जन। अब ये रेडियस हो गई, हाइट दी है 1, हमें एल पता नहीं है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
r इज 0.2 का स्क्वायर, h इज 1 स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, बट ये है 1 डेसिमल, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 डेसिमल होते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर 4, बट 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04, नॉट ओनली द 0.4। याद रखो, स्क्वायर करने से डेसिमल प्लेसेस डबल होते हैं। तो एडिशन प्लस 1 एडिशन कर दोगे, ये होगा 1.04। देखो ये एल स्क्वायर की वैल्यू है, सो देयर फॉर एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.04, इसका स्क्वायर रूट ले लो। अब ये स्क्वायर रूट की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने डेटा में ही दिया है रेडीमेड, दैट इज 1.02 मीटर। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ एल। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है उन्होंने, दैट इज 3.14, सो 314 बाय 100 इंटू रेडियस, रेडियस इट इज 0.2, तो 0.2 2/10 कर दो, एंड एल 1.02, 102 बाय 100। अब यहाँ कटिंग कोई करने का मतलब नहीं है, जीरो इसको रहने ही दो। Simply, this is what the square meter. This is the area for one cone. अब ऐसे 50 कौन से, तो यहां 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें टोटल एरिया ऑफ 50 कॉन्स मिल जाएगा, एंड देयर फॉर टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स इज इक्वल टू 50 इंटू, यहां पे ये एरिया ले लेना पड़ेगा 314 बाय 100 इंटू 2/10 इंटू 102 बाय 100, 50 टू जा 100, 2 टू जा ये कट हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 314 इंटू 102 कर देंगे, सो ये एंड 100 इंटू 10,000 हो जाएगा, ये 32,028 अपॉन 1000 स्क्वायर मीटर। ये 1000 का डेसिमल रख देंगे, सो इट विल बी 32.028 स्क्वायर मीटर। दिस इज व्हाट द एरिया। अब कॉस्ट के लिए सीधे चले जाओ, सो कॉस्ट फाइंड आउट करनी, 1 स्क्वायर मीटर के लिए 12 रुपीज का है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 square meter is 12 rupees, and therefore cost of painting 32.028 square meter is how much? So if I multiply 32.028 by 12, it will be approximately, the product is 384.34 rupees. This is what the cost of painting it is given. So ये सारे टोटल सारे के सारे जो एक्सरसाइज थी 13.3, इट गेट्स ओवर, बट इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हर वीडियो में हम लोग ऐसे नए नए शेप्स लेके आएंगे, हर एक अलग अलग शेप्स का एरिया। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग स्पीयर का एरिया लेंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे वॉल्यूम पर। तो हर एक वीडियो में, हर एक पीरियड में हम नए शेप्स के साथ हम उसके नए सारे सम्स लेते जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ।